ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ YouTube ਚੈਨਲ ਲਰਨ ਵਿਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼, ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਲਰਨ ਵਿਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਡਿਟਰਮਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਆਰ ਕਲੈਰੀਫਾਈਂਗ ਵਰਡਸ ਵਿਚ ਗਿਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਨਾਊਨਸ। ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਉਹ ਕਲੈਰੀਫਾਈਂਗ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਦੇਰ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਦੇਰ ਆਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਫਿਊ, ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹਨ। ਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾਊਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਨੇਬਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਊਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਏ, ਐਨ ਅਤੇ ਦ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਰ ਦਾ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਨਾਊਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਊਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੋ ਗਏ ਏ ਤੇ ਐਨ, ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਏ ਦਾ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਐਨ ਦਾ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੋਵਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ 26 ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਏ, ਈ, ਆਈ, ਓ, ਯੂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੋਵਲਸ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏ, ਈ, ਆਈ, ਓ, ਯੂ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਐਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਦ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ? ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਥਿੰਗ ਔਰ ਅ ਪਰਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਥਿੰਗ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਏ ਐਨ ਦ ਦੀ। ਏ ਬॉय, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬॉय ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਏ ਬॉय ਆ ਗਿਆ। ਐਨ ਅੰਬਰੇਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਐਨ ਅੰਬਰੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਦ ਗੰਗਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦ ਆ ਗਿਆ। ਐਨ ਐਮ ਏ, ਤੇ ਬਟ ਐਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਮ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਮ ਏ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਏ ਐਮ ਏ, ਐਨ ਐਮ ਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਏ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏ ਕੀ ਹੈ? ਵੋਵਲ ਹੈ, ਤੇ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨ ਐਮ ਏ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਐਨ ਓਨੈਸਟ, ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਓ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਆਰਟੀਕਲਸ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਪੋਜੈਸਿਵ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ। ਤੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਵਰਡ ਹੈ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ, ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈ, ਮਾਈਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੇਰਾ, ਯੋਰ, ਯੋਰਸ, ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਤੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ। ਤੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਯੂਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਨਾਊਨ, ਜਦੋਂ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਨਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਬੁੱਕ, ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਊਨ, ਤੇ ਮਾਈ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਤੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਯੂਜ਼ਡ ਆਫਟਰ ਦ ਨਾਊਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ,
तो इत्थे माइन हो गया डिटरमिनर, पर ये जिहड़ा डिटरमिनर है पोजैसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये बुक नाउन है, जिहड़ा बुक है इत्थे वर्ड नाउन है उस तो बाद आ रहा है, तो यह पोजैसिव प्रोनाउन है, तो इस दा रूल हुंदा है। तो हुण सानूं यह पता लग गया आर्टिकल्स की हुंदे ने, पोजैसिव डिटरमिनर्स की हुंदे ने, तो सानूं डिटरमिनर की डेफिनेशन भी पता लग गई है। तो हुण असीं जिहड़ा अगली डिटरमिनर की कैटेगरी करांगे वो है डैमोनस्ट्रेटिव डिटरमिनर। तो डैमोनस्ट्रेटिव डिटरमिनर सानूं की दसदी है, ये टैल्स अस अबाउट द नाउन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, है सानूं उन्हां नाउन्स के बारे दसदी है जिन्हां बारे असीं गल कर रहे हैं। जिवें असीं एग्जाम्पल किया सीगा भी दिस मैन इज़ माई नेबर, असीं उस पर्टिकुलर बंदे के बारे गल कर रहे हैं, तो उस बारे सानूं दस्सिया जा रहा है, तो दिस इज़ अ डैमोनस्ट्रेटिव डिटरमिनर। तो डैमोनस्ट्रेटिव डिटरमिनर किहड़े-किहड़े हुंदे ने, दिस, डैट, दीज, दोस। जदों असीं किसी पर्टिकुलर चीज़ की गल करिए तो उत्थे ਜਦੋਂ मीनस कि जो सानू यह पता लग गया कि ਅਸੀਂ उस पर्टिकुलर नाउन की गल कर रहे हैं तो वो हैगा डैमोनस्ट्रेटिव डिटरमिनर। तो दिस, डैट, दीज, दोस एग्जाम्पल हो गए। स्टेटमेंट्स करते सानू हो ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा सेंटेंसिस करके। आई लाइक दिस फिल्म, तो दिस है इत्थे हो गया डैमोनस्ट्रेटिव डिटरमिनर, क्योंकि असी उस पर्टिकुलर फिल्म की गल कर रहे हैं। दिस बॉय रनस वैरी फास्ट, कि असी पर्टिकुलर उस बॉय की गल कर रहे हैं, तो यह हो गया डैमोनस्ट्रेटिव डिटरमिनर। डैट बिल्डिंग इज़ वैरी ओल्ड, तो असी उस पर्टिकुलर बिल्डिंग की गल कर रहे हैं जो कि बहुत पुरानी है, तो इत्थे डैट हो गया डैमोनस्ट्रेटिव डिटरमिनर। तो दिस, डैट, दीज, दोस हो गए डैमोनस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। तो हुण असी करांगे अगली कैटेगरी जो कि है न्यूमैरिकल डिटरमिनर्स। तो न्यूमरल्स एक्ट एज डिटरमिनर्स वैन यूज बिफोर अ नाउन, जो नाउन तो पहले न्यूमरल्स आ जाते हैं, जिवें कि न्यूमरल्स किहड़े 1, 2, फस्ट, सैकेंड, तो वो डिटरमिनर्स होंगे ने जदों नाउन तो पहला आण। तो इस जिवें इस विच 1 पेन 2 बुक्स, तो इत्थे 1 तो ट्रू हो गए न्यूमरल्स, तो नाउन तो पहला आ रहे हैं, पेन है तो बुक्स नाउन सन, तो इन्हां तो पहला आ रहे हैं, तो यह हो गए न्यूमैरिकल डिटरमिनर्स। तो इस तो बाद जिवें फस्ट प्राइज़ सैकेंड प्राइज़, तो इत्थे सानूं सीक्वेंस पता लग रहा है कि फस्ट है तो या सैकेंड है या थर्ड है या थर्ड पोजीशन है, तो फस्ट तो थर्ड हो गए। सीक्वेंस भी सानूं पता लग रहा है, तो वो हुंदे ने न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स डिटरमिनर्स ने वो 3 तरह के हुंदे ने, डेफिनेट, इनडेफिनेट तो डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डेफिनेट तो सानू की पता लगता है, डेफिनेट तो सानू क्वांटिटी पता लगती है, तो सीक्वेंस पता लगता है। तो जो सानू क्वांटिटी पता लगती है जिवें 1 पेन 2 बुक्स, डेफिनेट डिटरमिनर नूं कहा जाता है कार्डिनल्स। पर जे सानू सीक्वेंस पता लगता कि फस्ट, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 10th, तो उसनूं कहा जाता है ऑर्डिनल्स। तो यह तो हो गया डेफिनेट। तो हुण हो गए इनडेफिनेट विच की हुंदा कि सानू क्वांटिटी है पता नहीं है, तो जिवें कि फ्यू, ऑल, अ फ्यू, सैवरल का अर्थ हुंदा 3 और 4 बट नॉट मैनी, इत्थे नहीं है 4 चीज़ां या सम, तो इत्थे सानू क्वांटिटी पता नहीं है। डेफिनेट विच सानू क्वांटिटी या सीक्वेंस पता है कि 1 पेन है या 2 पेन्स हैं या 10 पेन्स हैं या 10 बुक्स हैं, 20 बुक्स हैं, या सीक्वेंस फस्ट पोजीशन, सैकेंड पोजीशन, फस्ट प्राइज, सैकेंड पॉइंट। तो डेफिनेट विच सानू पता है, बट इनडेफिनेट विच सानू क्वांटिटी या सीक्वेंस पता नहीं है। तो इत्थे जिवें फ्यू, ऑल, सैवरल, सम, तो इत्थे पता नहीं है, तो इस करके इनडेफिनेट। तो हुण जिहड़े इस विच न्यूमैरिकल जिवें कि न्यूमैरिकल डिटरमिनर्स विच जिहड़ी अगली किस्म है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव विच सानू की पता लगता है, यूज टू टैल अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ डैट कैटेगरी। जदों असी उस पर्टिकुलर कैटेगरी दी सेंटेंस विच उस पर्टिकुलर कैटेगरी दी हर एक चीज़ के बारे गल करांगे, तो डैट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। इसके एग्जाम्पल्स हैं ईच, एवरी, ईदर, नीदर। तो इसे सेंटेंसिस करते हो ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। जिवें ईच चाइल्ड गॉट अ गिफ्ट, भी हर एक बच्चे नूं गिफ्ट मिले, तो इत्थे ईच आ गया, तो यह हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। एवरी परसन वॉन्ट्स मनी, भी हर एक परसन नूं पैसा चाहिए, तो इत्थे एवरी हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। हुण असीं करांगे क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। ते क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स तो सानू की पता लगेगा, सानू क्वांटिटी के बारे पता लगेगा, यूज टू कन्वे हाउ मच, या सानू यह पता लग जाएगा भी कि चीज़ है कितनी बची है। तो इस एग्जाम्पल्स असीं करते हैं अ लिटल मतलब कि स्मॉल क्वांटिटी, जिसका मतलब है थोड़ा जिहा। तो यूज इन अनकाउंटेबल नाउंस से अनकाउंटेबल नाउंस विच यूज होंदा, जिवें कि मिल्क, शुगर। हुण असीं दुੱਧ ਨੂੰ गिण तो नहीं सकते, पर असीं मिण सकते हैं भी जिवें मिल्क है वो 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है। इस तरह शुगर, चीनी के दाणिਆਂ ਨੂੰ असीं गिण तो नहीं सकते, पर मिण सकते हैं कि जिवें 1 किलो चीनी है, 2 किलो चीनी है, 3 किलो चीनी है। तो इत्थे अ लिटल का यूज होंदा, या टाइम वास्ते भी यूज हो सकता, जिवें कि आई हैव अ लिटल टाइम ऑन मंडे। तो अ लिटल का मतलब हो गया थोड़ा जा। तो इत्थे दूजा हो गया एग्जाम्पल लिटल का मतलब है कि वैरी स्मॉल और नैगलीजिबल, थोड़ा मीनस कि अ लिटल नालों भी घट। तो जिवें एग्जाम्पल हो गया आई हैव लिटल मनी लैफ्ट फॉर पार्टी। तो यह तो हो गया लिटल। हुण असीं करांगे द लिटल के बारे।
अ लिटल द लिटल हो गया ऑल ऑफ स्मॉल क्वांटिटी डैट इज़ देयर कि जिन्ना थोड़ा जिहा बचा होया वो पूरा। एग्जाम्पल करांगे होर क्लीयर हो जाएगा, जिवें ही गैम्बल्ड द लिटल मनी लेफ्ट, ही गैम्बल्ड द लिटल मनी ही हैड, कि ही गैम्बल्ड द लिटल मनी ही हैड मीनस कि उसको पहले ही थोड़ा जिहा पैसा बचिया सीगा ते जिन्ना उस कोल पैसा बचिया सीगा उसने पूरा ही पैसा लगाता जुए विच ते तां ही होया द लिटल दा यूज़ ही गैम्बल्ड द लिटल मनी ही हैड। तो सानू हुण डिफरेंस पता होना चाहिए। अ लिटल मतलब कि थोड़ा जिहा, लिटल मतलब कि थोड़ा, तो द लिटल हो गया जिन्ना वैसे ही थोड़ा जिहा बचिया तो जिन्ना बचिया होया वो पूरा ही। तो हुण अगला एग्जाम्पल है, अगली उदाहरण है सम। सम का मतलब हुंदा कुछ, जिवें ए हो गया मोर क्वांटिटी दैन फ्यू ते लिटल, तो फ्यू ना ते लिटल नालों थोड़ी जी जदों ज़्यादा क्वांटिटी होए तो सम का यूज़ हुंदा है। एग्जाम्पल करते हैं आई हैड सम मनी लेफ्ट फॉर पार्टी, कि मेरे को पार्टी लिए कुछ पैसे बचे हैं, तो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होया। तो लिटल विच असीं की देखिया सीगा आई हैव लिटल मनी लेफ्ट फॉर पार्टी, तो मेरे को पार्टी लिए ना मात्र ही पैसा बचे, बहुत ही थोड़ा पैसा बचा। तो सम का मतलब कि मेरे को पार्टी लिए कुछ पैसा बचे, पॉजिटिव सेंस में यूज़ होया कि मैं पार्टी वास्ते कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता हाँ। तो सम पॉजिटिव सेंस में यूज़ होया, तो उत्थे लिटल है एंड नैगेटिव सेंस में यूज़ होया। अगली एग्जाम्पल करते हैं कि एनी। एनी का मतलब होंगे कोई, तो इसकी वरतों कदों की जाती है, इसका यूज़ कदों किया जाता है? यूज़ फॉर अनस्पैसीफाइड परसन और थिंग यूज विद इंटरोगेटिव और नैगेटिव सेंटेंस। तो अनस्पैसीफाइड परसन या थिंग लिए वरत्या जाता है, तो क्वेश्चन वाले या नैगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेंगे, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स इन अमेरिका, कि तुहाडे अमेरिका में कुछ दोस्त हैं। तो इत्थे हो गया एनी का यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो नैगेटिव सेंटेंस में आई डोंट वेस्ट एनी फूड, कि मैं रोटी बर्बाद नहीं करता। तो इत्थे एनी का यूज़ हो गया, तो यह हो गया नैगेटिव सेंटेंस। तो इत्थे हो गया एनी का यूज़। तो हुण इस तो बाद अगला एग्जाम्पल है इनफ। इनफ का मतलब होंगे काफ़ी, तो यह की कन्वे करता है? इट कन्वेस नैसेसिटी, क्वांटिटी और अमाउंट। तो जिवें एग्जाम्पल हो गया ही हैज़ इनफ मनी, भी उसको काफ़ी पैसा, तो इसका मतलब हो गया इनफ। इनफ का मतलब हो गया काफ़ी। अगली एग्जाम्पल है मच। मच का मतलब हो गया ज़्यादा या बहुता, ग्रेट डील ऑफ, लार्ज क्वांटिटी ऑफ। तो इसकी वरतों कदों की जाती है, इसका यूज़ कदों किया जाता है? एफर्मेटिव, नैगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसिस विच। तो एग्जाम्पल करते हैं तो होर ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। मच मनी इज स्पेंड ऑन हेल्थ केयर, तो यह हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। ही हैजंट गॉट मच टाइम, यह हो गया नैगेटिव सेंटेंस। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद यू, यह हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यह तीन तरह के सेंटेंसिस विच मच की वरतों की जाती है। तो यह तो हो गए साडे क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। तो हुण असीं करांगे अगले डिटरमिनर्स, जो कि है इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स। इंटरोगेटिव का मतलब हो गया क्वेश्चनिंग करना, इंटरोगेशन करना, क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन विच किहड़े-किहड़े डिटरमिनर्स की वरतों की जाती है? वट, हुज अते विच। वट का मतलब होंगे की, हुज मतलब कि किस दा, ते विच का मतलब होंगे केड़ा। तो डिटेल विच पढ़ लेंगे हैं। वट सानू की इन्फॉर्मेशन दिंदा है? इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। वट इज़ द टाइम नाउ, तो इस विच सानू इन्फॉर्मेशन मिल रही है भी कि हुण की टाइम होया, वट इज़ द टाइम नाउ। तो वट का मतलब हो गया की। हुज यूज़ होंगे यूज़ टू आस्क अबाउट पोजैशन। जो तुसीं पोजैशन बारे पूछांगे कि यह बुक किहदी है, चीज़ किसदी है, तो उदों यूज़ होएगा हुज। जिवें हुज बुक इज़ दिस, बुक किहदी है, किसदी है। तो हुज का मतलब हो गया किसदा या किहदा। तो पोजैशन के बारे पता लग रहा है। तो अगला है विच। विच का मतलब हो गया केड़ा। यूज टू आस्क चॉइस, कि विच रोड लीड्स टू पटियाला। हुण जिवें असीं रस्ते ते जा रहे हैं तो 2-3 रोड्स ने, तो असीं क्वेश्चन करांगे कि विच रोड लीड्स टू पटियाला, कि पटियाले नूं केड़ा रस्ता जा रहा। तो इत्थे यूज़ हो गया विच, तो विच का मतलब हो गया केड़ा। तो दोस्तों यह तो सीगा थ्योरी पार्ट डिटरमिनर्स का। तो मैनूं पूरी उम्मीद है कि यह पूरी वीडियो देख के आप सारे नूं पता लग गया होगा कि डिटरमिनर्स की हुंदा है, तो डिटरमिनर्स ਦੀਆਂ किन्नियां किस्मां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। मैनूं पूरी उम्मीद है कि आप सारे यह वीडियो बहुत ही चंगी तरह समझ आ गई होगी। इस तरह के होर वीडियोज़ प्राप्त करने लई सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर।